Yes. Okay. Yes. So I am Shelly Maheshwari, and sir has already given my introduction, so I will not waste my time on that. So guys, आज यहाँ आप सबके साथ देख के मुझे अपने स्कूल डेज याद आ गए, and I really miss those days, and I'm sure you too gonna miss it. वैसे what about now? Missing those days and school की मस्ती या enjoying at home? I hope you all are missing school because those days are the best. Okay, so we will now start with our webinar. So सबसे पहले आज के उसमें स्टूडेंट जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो प्रेशर में आके फोर्स में आके मतलब बहुत स्ट्रीम्स चूज करते हैं. तो आप में से आई होप ऐसा कोई हो नहीं जिसने ये कॉमर्स स्ट्रीम फोर्स में आके या किसी को शो प्रूव करने के लिए करी हो. I really hope that because never do anything to prove others. Do for yourself. Okay, do you know Warren Buffett? I hope someone knows. Warren Buffett is an American investor, business tycoon, and he is considered one of the most successful investors in the world. And he said the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. And do you know, he bought his first share at the age 11 and now he regrets that he was too late. Can't believe ना. मतलब उसको अभी भी लग रहा है कि वो बहुत लेट था. And secondly, not this only, he bought a small farm at the age 14 with savings from delivering the newspapers. And what we are doing, what are our plans? कभी यहाँ कितने लोग के प्लान्स रेडी हो चुके हैं? कभी मतलब आई होप थोड़ा कुछ किसी ने सोचा हो, because you should make your plans at this age. But what we are doing, majority of our us is wasting our time on social media, Insta, Facebook and what not. But we should not know at this age. But do you know Apple co-founder Steve Jobs was the first tech giant who has admitted that in 2011 जो उसने iPad launch किया था, उसने खुद admit किया कि उसके children ने अभी तक खुद वो iPad use नहीं किया because he said he will limit how much technology our kids use at home. And he was not alone. Microsoft founder Bill Gates, he didn't let his children to have mobile phones until they were 14. And next, you will be surprised to hear the Facebook founder Mark Zuckerberg doesn't use Facebook like you or me because they didn't want their own children or to be addicted to the computers and Facebooks and many more social media sites. The time we waste on social media, same time they utilize for some productive work. So why we are wasting our time in this? And this is the only basic things which make them different from us. So क्या हमारी लाइफ में कितना बेसिक चेंज नहीं कर सकते हैं? क्या जो हमारे सोशल मीडिया की तरफ जो इतना एडिक्शन होता जा रहा है यूथ का, क्या हम उसे कम नहीं कर सकते हैं? वी शुड एंड वी शुड ट्राई. और हमें अपना ध्यान ये सब एक्टिव चीजों में, प्रोडक्टिव चीजों में देना चाहिए. And then in your life you should always give 100%. You never know what's coming next for you. Simple सा फंडा बना लो लाइफ का. You should analyze yourself. You should see what आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, आपके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, you should try to improve it. Instead, बिकॉज आप जब तक दूसरों से कंपेयर करते रहोगे आपको खुद डीमोटिवेशन मिलती रहेगी. आप खुद को खुद से कंपेयर करो, मैं कल क्या था एंड मैं आज क्या हूँ. इफ यू आर बेटर देन यस्टरडे, देन thumbs up. And always remember that you are not perfect and nobody is perfect. So it's obvious whenever you will try some new thing, you are going to commit some mistakes. और nobody is perfect in this world. मुझसे गलतियां हुई हैं, सबसे, आपसे होगी जब आप कुछ न्यू ट्राई करेंगे, एंड सबसे होगी. So own your mistakes, learn from it, and don't repeat it. Smart people always make mistakes, but they also learn from it. I'll just only share one incident from you. जब जीएसटी नया नया आया था, आई वॉज वर्किंग इन माई ऑफिस. तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने में बहुत लोग अवेयर नहीं थे, मतलब किसी को पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है. सो
आई एम जस्ट शेयरिंग माई कलीग एक्सपीरियंस। तो उसने मतलब एक क्लाइंट का रिटर्न गलत भर दिया था, एंड ड्यू टू दैट माई सर हैज टू बियर अ लॉस ऑफ 2 lakhs, बिग अमाउंट राइट? या आई नो, बिग अमाउंट, बट माई सर हैज टू बियर द लॉस ऑफ 2 lakhs। उसके बाद क्या बहुत डांट तो पड़ी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस उसने एक और बड़ी मिस्टेक की। व्हाट? ही स्टॉप ट्राइंग न्यू थिंग्स ड्यू टू द फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। तो उसके वजह से जो उसका लर्निंग स्किल था वो एकदम से गिर गया, वो कुछ नई चीज सीख नहीं पा रहा था। सो नेवर बिकम लाइक माई कलीग, ओके, नेवर एवर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज वेरी सीरियस मैटर नाउअडेज, कि आजकल स्टूडेंट्स पढ़ाई का इतना प्रेशर ले ले रहे हैं, वो इतनी टेंशन ले लेते हैं that many of them are committing suicides, और इतना प्रेशर कि मेंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूज, एक अपनी लाइफ एंजॉय करना तो भूल ही गए। सो डोंट स्टॉप एंजॉइंग योर लाइफ। एक अपने लाइफ स्टडीज को और अपनी लाइफ को एक बैलेंस बना के रखने की कोशिश करो। आई नो मार्क्स करना बहुत स्कोर है इन टूडेज टाइम, बट मार्क्स स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है if you have any proper strategy and with and proper planning. So just remember 5 to 6 basic points, and with that you can score very good marks. First, consistency. Look, हम कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है। आप एक दिन पढ़ रहे हो 17-18 घंटे, एक दिन पढ़ रहे हो 5-6 घंटे, एक दिन फिर बाकी धीरे 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 कम होते होते जीरो पे आ गए। तो ऐसे मत पढ़ो, एक फिक्स आवर्स बना लो कि मुझे रोज 3 to 4 hours पढ़ना है, एंड वो कंसिस्टेंटली आप वो ही फॉलो करते जाओ। सेकेंड पॉइंट, आपको आपके मेंटली अपने आप को बूस्ट करते रहना है, इसलिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी किसी को आप पे कॉन्फिडेंस हो या ना हो, you should have confidence in yourself. The only thing you need to wear well is your confidence. Remember this. Third basic point, do regular studies. सर मैम अभी तो 11th स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम है एग्जाम्स में, कर लेंगे, लॉकडाउन है, घर पे मजे चल रहे हैं। ये एटीट्यूड मत रखना, एग्जाम टाइम में बहुत बर्डन बनेगा एंड बहुत प्रेशर बनेगा। डू रेगुलर स्टडीज, थोड़ी थोड़ी स्टडीज करते रहो। एंड फोर्थ, एवरी स्टूडेंट आस्क कि क्या स्ट्रेटेजी होगी। आप सर मैम सबसे पूछते हैं सर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, बट आई से टू नॉट कॉपी अदर्स स्ट्रेटेजी। सबका अपना पैटर्न होता है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि कोई रात में पढ़ता है तो कोई सुबह उठ के पढ़ता है दिन में, सबका अपना पैटर्न होता है। अगर आप कॉपी करने जाओगे तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, आप और डिस्टर्ब हो जाओगे। सो यू शुड मेक योर प्लान्स। जितनी अच्छी प्लानिंग करोगे, जितनी अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ोगे, मार्क्स स्कोर करना उतना आसान हो जाएगा। आपने वो कोट सुना होगा, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। सो आपकी, बट एक चीज याद रखना, आप लोग की स्ट्रेटेजी जो भी हो, वॉट एवर इज योर स्ट्रेटेजी, always try to complete your syllabus 2 to 3 months before the exam, because जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, यू आर 25% रेडी और प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। देन आफ्टर दैट यू डू फर्स्ट रिविजन, वो आपको और 25% प्रिपेयर करता है। देन सेकेंड रिविजन विल एड 25% मोर इन योर प्रिपरेशन। बट ये तो सिर्फ 75% हुआ है, अपने को तो 100% की प्रिपरेशन करनी है, 75% से अपना क्या होगा? तो अब 25% की और प्रिपरेशन कैसे होगी? कुछ हिंट्स, गैस? नो। सो 25% आपका डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे। आप आंसर को जितना अच्छा प्रेजेंटेबल करोगे, आपके लिए मार्क्स स्कोर करना उतना अच्छा होगा। तो एंड दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट आपका प्रेजेंटेशन। आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, आपकी प्रैक्टिस करना, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी, सबको लिखना शुरू कर दो। ऐसा नहीं पी है, बिजनेस स्टडीज है, ये तो हम एक दिन पहले पढ़ के स्कोर कर लेंगे। डोंट डू दिस यार। अभी से कंसिस्टेंटली रेगुलर स्टडीज करोगे, सबका प्रेजेंटेशन अपना फॉर्मेट बनाने की कोशिश करोगे, सो यू कैन डू बेस्ट। नाउ 6, आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर लगना 11th-12th के, एंड दिस विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। ऐसा नहीं कि आप 11th-12th ऐसे ही मस्ती में निकाल दो, मस्ती करो, बट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, बिकॉज
आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगी। एक सीए था, उसकी AIR 1 आई, मतलब AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1, इतना अच्छा पैकेज मिला लाखों का, बट व्हाट हैपन, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो था एंड उसे जॉब से निकाल दिया गया, डिग्री ले ली गई बिकॉज ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं था, वो पूरे टाइम कॉपी बुक्स रट्टा मारता था, उसे कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं थे, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे। सो ऑलवेज मेक योर फंडामेंटल्स क्लियर। एंड लास्ट 7 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम हमारे एक्सक्यूजेस की लिस्ट बना लेते हैं। सर लॉकडाउन था, सर घर पे बहुत काम था, सर ये था, सर वो था, सर घर पे गेस्ट आए थे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो इतनी बड़ी गेस्ट वो एक्सक्यूजेस की लिस्ट के पीछे हम छुप जाते हैं, तो इसके साथ हमारे हाथ में कभी भी सक्सेस नहीं लग सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सक्सेस लगे, तो एक्सक्यूजेस की जो लिस्ट बनाई है ना आपने, उसको करना स्टार्ट करो, तो वो लिस्ट अपने आप खत्म होते जाएंगे। एंड द एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल इज फ्रंट ऑफ यू यार। मैं खुद हूँ, 12th में मेरे ऑलमोस्ट फॉर 1.5 मंथ्स के लिए मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी। मतलब मैं एक तो 11th 12th में कभी कोचिंग नहीं गई, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं स्कूल में अच्छे से नहीं अटेंड कर पाई। तो मेरे तब अकाउंट में मेजर चैप्टर जैसे पार्टनरशिप, शेयर्स, डिबेंचर, ये सब कंप्लीट हो गए थे। तो बट उसके बाद फिर मैं अटेंड नहीं कर पाई। तो अगर मैं एक्सक्यूज लेके चलती कि यार मेरी तो तबीयत खराब थी, मेरा तो इतनी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना लेती, तो मैं आज 12th में जितने मार्क्स स्कोर कर पाई हूँ, मैं उतने स्कोर नहीं कर पाती। तो इसलिए टीचर्स ने हेल्प करी, एंड मैंने खुद पे अपना इतना कॉन्फिडेंस रखा। सो मेक कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड डोंट मेक एक्सक्यूजेस, नेवर एवर। ओके, ओके, नाउ टेल मी वन टाइम, मतलब how many of you are still in doubt that कौन सा करियर चूज करे? how many of you? I hope majority, because इस एज में majority of the people are in doubt कि हम कौन सा चूज करें, क्या चूज करें। ऐसा होता ही है, हमारे साथ भी हो, आपके साथ भी होगा। 12th तक कंफ्यूजन रहता ही है, चेंजेस होते ही रहते हैं। बट मैं आपको एक दो चीज देती हूँ। आप व्हाट यू विल चूज, माइक्रोमैक्स और एप्पल? माइक्रोमैक्स 5 to 6 thousand का आता है, एप्पल 60,000। नॉर्मल शूज, आई होप यू विल चूज एप्पल। नॉर्मल शूज और बाटा शूज, नॉर्मल शूज 2 to 300 में आ जाएगा, बाटा शूज 1,000 2,000। So why did you choose Apple and Bata? हम सब चूज करेंगे because it has a value. Whenever you want to get a value, you have to create a value. हम क्या करते हैं, पापा को बोल देते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, बाइक, कार, स्टाइलिश, ये सब, और उसपे घूम के शो ऑफ करते हैं। बट जब आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, तब आप किस चीज का शो ऑफ करोगे? थिंक। तो ये शो ऑफ करना बंद कर दो। एंड दैट्स व्हाई अगर किसी की भी फॉर्च्यूनर में कोई घूम रहा है, शो ऑफ कर रहा है ना, तो उसको याद दिलाओ कि ये आपकी नहीं, आपके फादर की है। जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, नाउ डू यू नो कि डिग्री की आजकल बहुत इंपॉर्टेंस है, सब लोग डिग्री के पीछे भागते हैं। आई नो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर एवरीथिंग, बट डिग्री इज नॉट एवरीथिंग यार। डिग्री एक जस्ट डोर स्टेप। आप जब डोर में ओपन, मतलब एक चलते हो ना, तो स्टार्ट करते तो डोर जैसे ही खोलते तो बस एक वो डोर का काम डिग्री करती है। आफ्टर दैट व्हेन यू एंटर द रूम, you have to prove yourself with your skills and knowledge. So degree is important but not everything. Always follow your passion. आप फोर्स में आके या कुछ भी देखा देखी करके आप कभी अपना करियर चूज मत करना। आपका जो स्किल्स है, नॉलेज है, स्किल्स है, उस पे ही नॉलेज बेस करो। आपका जो पैशन है उसी पे नॉलेज और इंक्रीज करो, तो आपका करियर एकदम बूस्ट होगा, एकदम हाईएस्ट पे होगा, टॉप पे होगा। आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल। आपने बहुत बार मतलब सुना है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं बहुत सिंपल, एक आप सचिन तेंदुलकर को बोलोगे गाना गाने को, आप लता मंगेशकर को बोलोगे क्रिकेट खेलने को, तो नहीं हो सकता। उन लोग ने अपना पैशन फॉलो करा, सो दे आर नाउ इन द टॉप ऑफ देयर करियर्स। अगर हम उनको दूसरी चीज करने को बोलते तो वो आज जहाँ हैं वहां बिल्कुल भी नहीं होते। So always follow your passion. And if you have any talent or dreams, don't neglect your talent or dreams because of studies. And the same with studies.
नेवर एवर निग्लेक्ट योर स्टडीज एंड नेवर एवर निग्लेक्ट योर टैलेंट। बहुत बार होता है, मुझसे भी हुआ है, मैंने कुछ सारे स्टार्टिंग के स्टडीज में जो मुझे पसंद थे, मेरे जो शौक थे, ड्रीम्स थे, आई अवॉइडेड, बट मैंने धीरे धीरे समझा एंड उसको करा, बिकॉज बहुत रिग्रेट फील होता है यार, काश मैं कर पाती। एंड प्लीज कभी डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू सो दैट यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ। कभी भी लाइफ में ये बोलने का मौका मत देना, काश मैं ये कर पाता, काश काश काश। बिकॉज वो जो रिग्रेट रहता है ना, बहुत है। तो जो करना चाहते हो कर दो बिंदास, ये मत सोचो कि दूसरे क्या सोचेंगे। डोंट थिंक दैट। ओके, सो स्टार्ट करना, बट ड्यू जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल कि मुझे भी एक जस्ट पेज स्टार्ट करना था फॉर स्टूडेंट्स, बट मैं स्टडीज एंड बट मेनी मोर थिंग्स में बहुत लेट हो गई। बट आई नेवर गिव अप ऑन माई ड्रीम्स एंड नाउ आई हैव सक्सेसफुली स्टार्टेड माई पेज। सो लाइक दैट, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो पैशंस है, उसको, आपका जो टैलेंट है, उसको कभी स्टडीज के कारण पीछे मत छोड़ना प्लीज। हम सब ने करा ये मिस्टेक और हम सभी करते ही हैं स्टडीज के प्रेशर में, बट डोंट डू दिस। उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करना। सो द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड एंड योर ओनली लिमिटेशन इज यू। याद रखना, योर ओनली लिमिटेशन इज यू। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से, लाइफ में हमेशा दो रूल याद रखना, ओनली टू रूल्स। रूल नंबर वन, you have to be odd to be number one. What? You have to be odd to be number one. And rule number two, always remember rule number one. Okay. So that's all from my side. I hope you all enjoyed with me. Stay safe and stay healthy, and all the best for your bright future. So, do you have any questions? Any students? आपकी कोई problems हो या